Hello dear students, today I am going to start a new chapter under the revision portion of the Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce. We completed chapter number 1 with the offline whole syllabus, whole chapter, and online some of the different questions with the help of the past papers, with the help of the past asked questions, and also some of the general questions related to the statements and some of the common 1-2 mark questions. So it was there in the chapter number 1. Now let's move to the chapter number 8, that is the financial management. Here some of the points are not there in the syllabus, just financial decisions, right? Fixed capital, it is not there. So financial decisions and fixed capital is not there. We already discussed in our offline classes, and also when the particular online classes were there, we discussed these points are not covered. So let's start with some of the statements and some basic information of this particular chapter. Start with the first one. Here it is. Finance is the blood, that is lifeline of business, explain the statement. Or second one, finance is like the foundation stone of each business, explain the statement. So if the type of the information is there, statement type of the information, you can easily write down the answer with the help of the basic information of this financial management. This is the particular information from the chapter number 8, first para, that is related to the foundation stone. So you can say finance is simply blood for business, or blood of business, or we can say it is for the foundation stone. So finance is the blood of business. For the business it is very important. The existence of human life is not possible without the circulation of blood, isn't it? We can't live without the blood. In a simple sense, the human life or existence of our life is totally possible with the help of the blood, and circulation will be there then and then, right? So you know that one as per the 8 and 9 and 10 science syllabus, आपको मालूम है. So likewise the existence of the business unit is not possible without finance. So if you want to start the business, there is a need arise of finance. If you want to continue the business, if you want to run the business, finance is at the top. So likewise we can say existence of the business is totally dependent on finance. So we have to compare first of all, if you want to write down the answer, compare first of all your lifeblood with the business and your particular blood in your body. सो यहाँ बॉडी में जो ब्लड का काम है वही बिजनेस में फाइनेंस का काम है. ये पहले आपको कंपेयर करना है इन द एग्जामिनेशन. ओके, नाउ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट टू एंड. एंड तो होगा ही नहीं, लेकिन कीप इन माइंड कि इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग इंसेप्शन टू द लाइफ टाइम. तो यहाँ पर थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस जब तक वो चलेगा तब तक फाइनेंस की ज़रूरत रहेगी. नेक्स्ट वन, ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ रिक्वायर सम फाइनेंस. थोड़ा तो थोड़ा बहुत हर एक एक्टिविटीज़ में पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए. जनरली ऐसा होता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस वन. सो हमने 11 में भी सीखा है अपने चैप्टर नंबर आई थिंक 7, 8 में या 8 में कि दिस इज़ द पर्टिकुलर थिंग कि विदाउट दैट फाइनेंस यू कांट रन द बिजनेस. ये पहले ही मैंने बोल दिया. तो फाइनेंस ऐसा है कि छोटे कामों के लिए भी हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी. सो कीप इन माइंड ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ रिक्वायर फाइनेंस. नेक्स्ट वन, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस फॉर द फॉलोइंग रीजंस. क्यों और कैसे फाइनेंस चाहिए, यहाँ 5 पॉइंट दिए हुए हैं. पहला है टू एस्टैब्लिश द बिजनेस. बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंस चाहिए, टू स्टार्ट द बिजनेस, टू एस्टैब्लिश द बिजनेस. सेकंड वन, टू परचेज फिक्स एसेट्स फॉर द बिजनेस. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट द यूनिट विद द प्रोडक्शन, with the manufacturing, so there is a need arise of the purchase of the different type of the fixed assets, right? So without fixed asset how you will produce the goods, तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए. थर्ड वन है टू मीट द रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. क्योंकि आपने बिजनेस की शुरुआत की, अभी फिक्स कैपिटल पर्टिकुलर कैपिटल आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आपको डेली एक्सपेंसेस के लिए, रूटीन एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए. थर्ड रीज़न. फोर्थ रीज़न, फॉर एक्सपांसन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस. If you want to start the business, finance required. So if you want to expand your business after 2, 3, 5 years, so there is a need of the money. पैसा चाहिए ना, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते. सिंपल. एंड फिफ्थ वन, टू मेक द पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस डेट. दैट इज द particular creditor, loans, different things. So you have to pay the debts, whatever you received, whatever you acquired from the outside of the business. बिजनेस चलाने के लिए, शुरू करने के लिए आपने पैसे जो बाहर से लिए थे, राइट, जो डेट किया था, राइट, थ्रू द क्रेडिटर और अदर, राइट, सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस, तो उसको पैसे वापस देने, सो उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए. तो हियर वी कैन से फाइनेंस इज कंसिडर एज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ईच बिजनेस. तो उसकी वजह से ही पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा होगा. Okay. So that's why we can say finance is the lifeblood, lifeline, or foundation stone of each business. Let's move to the next one.
Here it is. What does the objective of owner's maximum economic welfare mean? सो यहाँ हमने टू टाइप के आपके सिलेबस में जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव दिया है ओनर्स मैक्सिमाइजेशन इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है। सो ये डायरेक्टली बुक में से लिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर हमने अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। सो द मेन मोटिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू प्रोवाइड मैक्सिमम रिटर्न्स टू द ओनर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ आप याद रखो और यहाँ आप देखो कि हमारा मेन मोटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, मैक्सिमम रिटर्न्स टू द ओनर्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। ओनर्स ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इन द सेंस ऑफ कैपिटल, उसके सामने उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए। सो आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस ऑल्सो बिकॉज आई एम द शेयर होल्डर। हो सकता है ना, तो मैं भी शेयर होल्डर हूँ, मैं भी ट्रू ओनर हूँ, तो मेरा भी रिटर्न बनता है। सो मेन मोटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, जिसने इन्वेस्ट किया है उसको पैसे अच्छे रिटर्न या मैक्सिमम रिटर्न के साथ मिलने चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। और ये कैसे पॉसिबल होगा? दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज़ मैक्सिमम। तो COC जो भी होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप डालते हो, उसके पीछे जो भी आपका आउटपुट आता है उसको बाजार में बेचते हो। लेकिन यहाँ पर ये याद रखो कि ROR रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल के ऊपर मैक्सिमम होना चाहिए। जितना भी हो उसके सामने उसको हाई लेवल का रिटर्न मिलना चाहिए। सो ओनली in the case of the different investment, ROR rate of return must be high, it must be capital must be high। अब क्या होता है, सिंपल सा चीज़ है, आपने 1 करोड़ डाले हो और आपको ऐसी शायद ऐसा हो रहा है कि मे बी ये इन्वेस्टमेंट शायद गोल्ड में या किसी और में होता तो विल गेट द बेटर आउटपुट एंड, लेकिन बिजनेस में डाला है तो रिटर्न अच्छा नहीं तो आप वहाँ से निकाल लो कि लॉस में जाएगा, दूसरे में डालो कि वहाँ लॉस जाएगा। सो ट्राई टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम दी वन सोर्स देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट अदर, राइट। जो भी इनकम है, ये यहाँ की बात नहीं है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट। लेकिन सिंपल द थिंग है, रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, रेट उसका ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट वन, देयरफॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी टेक सच फाइनेंशियल डिसीजंस बाय विच द वेल्थ ऑफ द कंपनी इज़ मैक्सिमाइज। यहाँ पर हम बात करें एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक यूनिट की, राइट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, उनको ऐसा डिसीजंस लेना चाहिए रिलेटेड टू फाइनेंस कि उसका जो भी आउटपुट आए, राइट, वो इन द सेंस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइज्ड हो। ओके, सो प्रॉफिट आएगा, उसके बाद ही वो वेल्थ में कन्वर्ट होगा। फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड प्रॉफिट इज इट विल कन्वर्टेड इनटू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड देन यू कैन परचेज द डिफरेंट ऑफ द एसेट्स। ओके, सो ये सब जुड़ा हुआ है। सो इट शुड बी वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज। नेक्स्ट वन, इफ द वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज, अब यहाँ से प्रॉफिट की वजह से, फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से आपका वेल्थ मैक्सिमाइज हो गया, इट विल रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली इन द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड इन द पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज, राइट, शेयर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में आप उसको ले सकते हो, बाय सेल कर सकते हो। IPO के तौर पर आप प्राइमरी मार्केट में भी एंटर हो सकते हो। आप ऑलरेडी कंपनी हो चुके हो, आपकी पब्लिक कंपनी है, आपके शेयर्स है, तो फिर जो भी आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हुआ तो डायरेक्टली इट विल बी इफेक्टेड इन द पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस पॉजिटिवली, राइट, और आपको आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा, तो शेयर प्राइस विल इंक्रीज। नेक्स्ट वन, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज इन द शेयर मार्केट, सिंपल। सो ये तो जुड़ा हुआ है ना, स्टॉक एक्सचेंज में आपका जो भी शेयर्स है, अगर पॉजिटिवली उसको देखा जाए, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, न्यू एस्टेब्लिशमेंट होता है, नए नए यूनिट खुलते हैं, नए नए फैक्ट्री सेट्स खुलते हैं, एक्सपांसन होता है, बिजनेस का डेवलपमेंट होता है, तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि शेयर मार्केट में आपकी जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगी, राइट। फ्लक्चुएशन के हिसाब से, मार्केट प्राइस के हिसाब से आपकी इमेज भी मार्केट में बढ़ेगी। सो दैट इज़ द थिंग कि हाउ यू विल अर्न मोर एंड मोर। Okay, and try to provide all the information related to your business, related to your company, to your shareholders. And we are, as a company, we are providing this information, or we will provide through the particular annual reports, right? और as per the rule nowadays, हर एक कंपनी को उसको पब्लिश करना पड़ता है, तो they are providing the information in that way. So dear students, today we discuss the 2 points that is related to the chapter number 8, financial management. The first one, that is the statement type, that is lifeblood, right, or also we can say the फाउंडेशन स्टोन। फाइनेंस वो फाउंडेशन स्टोन है, बाकी रूटीन में हम जा ही रहे, आपको मालूम भी है कैसे हमको लिखना है। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, दैट इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनर्स मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर है, तो उससे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ले सकेंगे।
ऑन कर सकेंगे. So we will continue next session also this financial management with the different questions. Thank you.